पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने जब से इस्तीफा दिया है तभी से वह खामोश बैठे हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं उनकी हॉली सिटी स्थित उनके निवास स्थान के बाहर। आज उन्होंने ईस्ट विधानसभा हलके से, जहां से वो विधायक हैं, उन्होंने इस विधानसभा हलके से जो जितने भी पार्षद हैं और उनके सहयोगी हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी और उन्हें बुलाकर ये कहा गया है कि वह कल यानी कि बुधवार को सुबह 11:30 बजे भंडारी पुल पर इकट्ठे होंगे और वहां पर शांतिपूर्वक काले झंडे उठाकर हाथ में एक प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खिलाफ जो खेती बाड़ी नया ऑर्डिनेंस लाया गया है, पूरे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी ये करीब 1.25 साल के बाद पहला मौका होगा जब वो सार्वजनिक तौर पर बाहर आएंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीछे नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी है और जहां पर सुबह बैठक हुई थी। करीब पार्षद और उनके करीबी यहाँ पर करीब 2 घंटे तक बैठे। हमारे साथ हैं उनके करीबी मिट्ठू मदान। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से क्या गाइडलाइन दी गई हैं, उन्हें क्या कहा गया है कि किस तरह ये प्रोटेस्ट रहेगा और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। मिट्ठू मदान जी, थोड़ा दसना सानू तुसी किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू जो आए तो उन्होंने की क्या? जब सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी आए, उन्होंने अज मीटिंग रखी सी जी। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਕੱਲ 11:30 ਵਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਡੀਅנס ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਵਰਗ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੀਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ 11:30 ਵਜੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੱਲ ਉਤਰਨਗੇ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੂ ਜੀ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ? ਇਹ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕੱਲ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਅੱਜ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 17-18 ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ, ਦਮਨ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਨਵਦੀਪ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਬੱਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ, ਰਜੇਸ਼ ਮਦਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਐਸਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਜੀ, ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਭੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਈਸਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਜਿਹਾ ਵਾਰਡ ਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮਿੱਠੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, 2022 ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। बहुत बहुत मिट्ठू जी तारा धन्यवाद। ये थे मिट्ठू मदान, इनके माता जी काउंसलर हैं। अब हमारे साथ हैं पार्षद पति गिरीश शर्मा, इनकी पत्नी वार्ड नंबर 27 से मोनिका शर्मा पार्षद हैं। ये भी सिद्धू साहब, नवजोत सिंह सिद्धू से बैठक करके आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार सिद्धू साहब ने इनको क्या कहा है। गिरीश जी थोड़ा बताएंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको क्या कहा है। बिल्कुल जी, जैसे अब चल रहा है प्रोग्राम किसानों का, और उसी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग की गई थी। सभी काउंसलर आए और जो हमारे मेन प्रधान या जो भी हैं हल्के के, उनको बुलाया गया था। और यही मीटिंग रखी गई है कि सिद्धू साहब के द्वारा कि ये जो किसानों के आंदोलन चला है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, उसी के लिए हमने कल का प्रोग्राम रखा है। नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे तो, लेकिन सिद्धू साहब ने कुछ ये डायरेक्शन दी आपको भी, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन करना है। बिल्कुल जी, सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले रखते हैं और ध्यान भी रखते हैं, और सबको बोला है कि इसी का ध्यान रखते हुए किसी ने ओवरलैपिंग नहीं करनी, धक्का मुक्की नहीं करनी, अपने मास्क पहन के रखना है और उसी के हिसाब से ये करना है प्रोटेस्ट। नहीं तो सिद्धू साहब क्या कहीं डीसी साहब के पास या कुछ मेमोरेंडम भी देंगे क्या, जो कार्यक्रम क्या है थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। इनमें जैसे होता है कि उन्होंने बोला है कि जो उनको मेमोरेंडम भेजा जाएगा, लेटर भेजी जाएगी डीसी साहब को भी और कमिश्नर पुलिस को भी, क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट करना है, पब्लिक को दिक्कत ना हो, ये उनका पहला मोटो होता है कि पब्लिक दुखी ना हो। और उन्हीं को देखते हुए उन्होंने उसी ध्यान से सबको लेटर भेज रहे हैं कि आप हमारा ऐसा अरेंज कर दो, भंडारी पुल पे जो किया जाएगा प्रोग्राम, वो प्रोटेस्ट जनता को दुखी ना हो और किसानों के हक में जाए। अगर हम बात करें तो क्या पार्षदों की ओर से या जो भी उनके करीबी हैं उनकी ओर से कहा गया कि सिद्धू साहब अब बहुत मौन व्रत से बाहर निकलिए, बहुत समय हो गया है आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू साहब ने ये नहीं, किसी पार्षद ने ये नहीं कहा भी आप मौन में रहे हो या मिल नहीं रहे हो। सिद्धू साहब अपने पार्षद को मिलते रहते हैं, प्रधान भी जो आते हैं रेगुलर। देखो कोई हर आदमी की, जैसे मैं काउंसलर की बात करूं तो मेरा एक प्राइवेट लाइफ भी है कि हर समय में मैं बिजी भी नहीं रह सकता और हर समय फ्री भी नहीं रह सकता। वही बात एमएलए की, एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनका दायरा ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, उसी हिसाब से वो मिलते भी हैं और काम भी करते हैं। काउंसलर किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप बाहर आओ जी, आप अंदर ऐसा बाहर आओ। सिद्धू साहब अभी लॉकडाउन रहा है तो लॉकडाउन में वो महीना आपने देखा ही होगा कि वो हर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है राशन लेके पहुँचते रहे हों। गिरीश जी आपकी बात ठीक है, अभी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन लोगों ने इनको जिताया है, लोग चाहते हैं कि हमारे सुख दुख में शरीक हों। सिद्धू साहब 15 महीने से ये अंदर अपने किसी को मिलने, बाहर नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए जनता पूछना चाहती है कि क्या सिद्धू साहब कब तक खामोश रहेंगे, जनता के बीच आखिर कब आएंगे, क्योंकि अब तो अगले चुनावों को भी समय बहुत कम रह गया है। जनता के बीच से सिद्धू साहब गए ही नहीं है। अब मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि ये काउंसलर 18 हैं, उनके हल्के के 18 वार्ड हैं और 18 काउंसलर बने हुए इलेक्टेड हैं, और अगर उस सिद्धू साहब के कांग्रेस पार्टी के सारे सिपा सलार हैं, एक भी काउंसलर आप बता दो जो घर में बैठा रहा है लॉकडाउन में, या पिछले 10 महीने में भी देख लो। हम अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की नहीं बात करता हूँ। मुझे आप जिस दिन से इलेक्टेड हुए हैं उस दिन से लेके आज तक मैं एक एक दिन का डिटेल दे सकता हूँ। गिरीश जी अगर हम, जब वो आए थे तो उन्होंने पार्षदों को संदेश क्या दिया है, अगर हम उनकी भाषा में बात करें तो। सिद्धू साहब के द्वारा सिर्फ एक संदेश क्लियर कर था कि कल हम जो है किसानों की रैली, किसानों के हक में उतरेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे उनके साथ जब तक उनके साथ ये प्रोग्राम चालू होता। ये थे पार्षद पति गिरीश शर्मा, जिनकी पत्नी 27 वार्ड से पार्षद हैं। इन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आज जो ईस्ट विधानसभा हल्के के 18 पार्षद हैं वो सभी के सभी हाजिर थे। कल भंडारी पुल पर सुबह 11:30 बजे एक रोष मार्च निकाला जाएगा, लेकिन वो शांतिपूर्वक होगा। काली झंडियां हाथ में उठा रखेंगी। इनका विरोध जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से किसानों के लिए जो 3 नए विधेयक लेके आए गए हैं, ऑर्डिनेंस लाया गया है, इनका कहना है किसान इससे बर्बाद हो जाएगा, इस ऑर्डिनेंस को तुरंत रद्द करना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार जनता से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक तो ये है पिछले 15 दिनों से खामोश हैं सिद्धू और इसी कोठी में ही बैठे हैं, बाहर कम आते हैं। अब देखना कल ये है कि वह कल सुबह भंडारी पुल पर आते हैं, अगर वो आते हैं तो क्या मीडिया से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं या नहीं, या फिर मौन रहते हैं और चुपचाप आकर चले जाते हैं। अमृतसर से D4 न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।